Today we shall discuss about a concept that is NPC, normal probability curve. As we usually do, firstly we shall outline the lecture, and the lecture is related to the basic concept of NPC, you can see, and then different characteristics of NPC. It's symmetrical, again it is unimodal, again it is asymptotic, and the height of the curve. And we shall also try to know about the distance from the mean, and as we shall discuss, it is being measured in terms of the standard deviation, and that is written as sigma. This figure has been taken in order to show the 50% in both the side, rather symmetrical nature of the NPC as a curve, and it has been taken from net. Again you can see the characteristics, how many cases lies between 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, that is between mean and 1 sigma, between mean and 2 sigma, between mean and 3 sigma. And this is also a figure from which you can understand the percentage area that lies between mean and 1 sigma, 2 sigma and 3 sigma, as we were discussing in previous slide. Then it is related to the limit, that is how much area is being covered by 95% and by 99%, that is 1 plus minus 1.96 and plus minus 2.58. So we shall discuss it, and the distance between minus 3 sigma to plus 3 sigma, and how many cases lie there. And you can also come to know that arbitrarily we consider that there are 10,000 cases in the entire NPC, and we have to convert, and that is the basis of solution of any problem related to NPC. If we have to use the formula z is equal to x minus m divided by a standard deviation. And again the characteristics related to Q1 and Q3, how Q1 and Q3 and its distance are related to each other, and this is the parameters of normal distribution. We shall discuss that there are two parameters of NPC, that is mean and standard deviation. We shall define normal probability curve, rather normal probability curve is being defined in terms of mean and standard deviation. So these are two parameters of NPC. So we shall start the lecture. So you can see, you can also see the figure this I have drawn, and frankly speaking this is not NPC. So in order to understand NPC, you see this figure, this I have drawn, but this is not the exact NPC, it is a little bit skewed. So normal probability curve is a graphical representation of a normal distribution. Of course there is graph, so it is a graphical representation, and in the process of representing
the concept through graph, normal distribution is very important. You can see it is based on the law of probability, equal chance of appearing, you can say. If we peep into the history of NPC, two brilliant mathematicians, Laplace and Gauss, independently derived this concept. And the curve is also known as Gaussian curve, and that has been named after the great mathematician Gauss. So this is about the NPC based on normal probability and given by two mathematicians, Laplace and Gauss, and it has been also named on the name of Gauss. So it is also called as Gaussian curve. Then you can see it is symmetrical. It is symmetrical around its vertical axis called ordinate. Left and right portion from the ordinate of the curve are identical in size, shape and slope. It has bilateral symmetry. If its left and right part by cutting are kept on one another, one can see only one. So, though as I have told, this is not the exact construction. I have not been able to make the exact NPC, but if it is exact NPC, not it is a little bit askew, then this is, it divides into two parts and both the parts looks alike. और जब हम इसको काट के, मान लीजिए कि हम बीच से इसको काट के एक दूसरे को ऊपर रख देंगे तो ये ढक जाएगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक एनपीसी का इसका सिमेट्रिकल नेचर है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो इंपॉर्टेंट है, द कर्व इज यूनिक मॉडल एज इट हैज ओनली वन मैक्सिमम point or mode. Only one point of the curve has maximum frequency. यहाँ देख सकते हैं, this is the only maximum. If there looks two or more than two maximum mode where maximum frequency occurs, it means it is not the exact figure of NPC. Again, the mean, median and mode of the normal distribution lie on the same middle line, that is ordinate. This is ordinate. And in the value, they all are the same. So we can say for the ideal NPC figure, mean, median and mode lies on this line. If the value of mean, median and mode are different, it means it is not a NPC. So this line, ordinate, the frequency is maximum, the value of mean, median, mode is the same, and this is one of the important characteristics of NPC as a concept. So we have discussed about the unimodal, that is the maximum frequency on along one line, and if the NPC is in its true shape, the value of mean, median and mode, that is all the three measures of central tendency will lie on the same line, that is ordinate. Again, it is also a very important characteristics of NPC, and that is asymptotic. It is asymptotic to the x-axis. This is x-axis, and you can say this is y-axis.
So it is asymptotic to the x-axis. The curve decreases in its height on both ends from the midpoint, but it never touches the x-axis. मतलब horizontal axis. Its both ends are open and go to the infinity, plus infinity to minus infinity. It approaches but never touches the baseline. Mean is the starting point as the curve does not touch the baseline. So it is asymptotic. एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ से ये इस तरफ बाईं तरफ या दाईं तरफ जाता है तो घटता चला जाता है। और जो पॉइंट होगा यहाँ, जैसे एक पॉइंट यदि हम ले और यहाँ एक पॉइंट ले, तो यदि एग्जैक्ट एनपीसी है तो इसको मिलाने पे ये हाइट और ये हाइट बराबर हो जाए। दूसरी बात जो हम लोगों ने इसमें देखा कि ये जो लाइन है ये कभी एक्स एक्सिस से मिलता नहीं है। देखिए ये एजम्पशन, ये इंफिनिटी तक चला जाता है, प्लस इंफिनिटी मतलब इस साइड, माइनस इंफिनिटी मतलब इस साइड, लेकिन कभी भी ये एक्स एक्सिस को जो हॉरिजॉन्टली है उसको टच नहीं करता। एसिम्प्टोटिक का मतलब आपने समझा कि ये जैसे ही, अब जैसे यहाँ एक पॉइंट लेंगे और इसी के पैरेलल में यहाँ एक पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस आपको एक समान लगेगा if it is the true figure of NPC. If we draw wrongly then it can shift, but if it is the perfect figure of NPC, so asymptotic and it never meets with the x-axis. So this is one of the important characteristics of NPC, that is asymptotic, and it extends from minus infinity to plus infinity and it never touch. One more important aspect that is very important to understand is that it starts from mean. Why it starts from the mean? Because it never ends and it never starts. हमने अभी कहा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी की तरफ चला जाता है और इसकी कोई सीमा नहीं है, ये मिलता नहीं है एक्स एक्सिस से, इसीलिए इसकी शुरुआत कहाँ से माना जाता है? इस ऑर्डिनेट से। इसीलिए, और चूंकि हमने अभी कहा कि एनपीसी का जो सबसे बड़ा ऑर्डिनेट है उस पे मीन लाई करता है, और यदि हमारा ग्राफ बिल्कुल एनपीसी के फॉर्म में है, थोड़ा भी स्क्यूड नहीं है, थोड़ा भी हिला हुआ नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि उस पे मीन, मीडियन और मोड तीनों लाई करें। यदि मीन, मीडियन और मोड तीन ऑर्डिनेट पे शिफ्ट करते हैं, यदि एक ऑर्डिनेट पे लाई नहीं करते हैं, इसका सीधा मतलब है कि एनपी जो डाटा है वो नॉर्मल नहीं, नॉर्मल डाटा का वो रिप्रेजेंटेशन नहीं। सो अगेन, एट द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व हैज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट, दैट इज एट द मीन द हाईएस्ट ऑर्डिनेट एग्जिस्ट। From the maximum point, the height of the curve declines symmetrically in both the directions. अभी हम लोगों ने बात कि ये जो हाइट है ये मैक्सिमम, ये जो ऑर्डिनेट, जैसे यहाँ से और भी रेखाएं खींची जा सकती हैं इसको एक्स एक्सिस के अलोंग और वर्टिकली यू कैन से, लेकिन ये जितने भी लाइन होंगे वो सभी इस ऑर्डिनेट से छोटे होंगे, इसी ऑर्डिनेट पे आपका मीन लाई करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने जो की वो यह कि ये जो हाइट है ये सिमेट्रिकली घटता चला जाता है। जैसे यहाँ का हाइट यहाँ के हाइट से कम है, यहाँ का हाइट यहाँ के हाइट से ज्यादा है, ये हाइट कम है। देखिए यहाँ आप मिलाएंगे तो यहाँ ये हाइट है, तो ये सिमेट्रिकली लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ये सिमेट्रिकली क्या होता है? घटता चला जाता है। मतलब जितने भी ऑर्डिनेट हम, यदि हम इसको मिडिल ऑर्डिनेट कर दें, हाईएस्ट ऑर्डिनेट कर दें, और होता भी है क्योंकि उसी पे मीन लाई करेगा, तो वो सिमेट्रिकली घटता चला जाता है। मतलब इस तरफ भी घटता जाता है और इस तरफ भी घटता चला जाता है। सो दिस इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट, rather
दिस इज द ऑर्डिनेट हैविंग मैक्सिमम हाइट, और इसी को मिड पॉइंट कहते हैं। ये थोड़ा सा दिख रहा है कम, ध्यान से देख लीजिए जरा। तो द पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स इन एनपीसी अकर्स एट ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू यूनिट above and below the mean। जैसे देख सकते हैं यहाँ, अब इसको जरा मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, इसको मिटाने से थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा। फिगर में थोड़ी सी दिक्कत आती है बनाने में। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ, सॉरी थोड़ा सा कट गया, इसको मिला दीजिए। और फिर ये इस लाइन को जब यदि हम देखते हैं तो यहाँ क्या है कि जैसे देखें, अब ये मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो इस डिस्टेंस को और फिर इस डिस्टेंस को, ये जो इधर देखा कि मैक्सिमम पॉइंट से बाईं तरफ और दाईं तरफ, तो यहाँ इस दोनों पे भी हम मिलाएंगे तो इस डिस्टेंस को दाईं तरफ जो है उसको +1 सिग्मा और बाईं तरफ जो है उसको -1 सिग्मा, और इसी से हम दूरी मेजर करते हैं। ये दूरी मतलब मीन से 1 सिग्मा इस एरिया या दूरी को इंडिकेट करता है, और फिर +1 सिग्मा। उसी तरह से माना यह जाता है कि 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, इस तरफ भी 2 सिग्मा इसके पैरेलल यहाँ आएगा और 3 सिग्मा। फिगर में थोड़ा बहुत इधर होगा तो आप उसको समझ लीजिएगा, सेफ और नहीं मिस्टेक। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस को का जो यूनिट है वो ये है कि m मीन से -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, और फिर मीन से +1 सिग्मा, +2 सिग्मा और +3 सिग्मा। माना यही जाता है कि लगभग 99.74% केसेस जो है वो -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच का केस है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जो हमने कहा पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स, the point of influx in a NPC occurs at ±1 st, मतलब सिग्मा भी उसको कह सकते हैं, सिग्मा को ऐसे लिखते हैं मतलब +-1 सिग्मा, और यहाँ सिग्मा को ही हमने ये ड्राफ्ट में जो हमारा पावर पॉइंट है उसमें हमने st लिख दिया। तो इन the point of influx in an NPC occur at ±1 st to unit above and below the mean। यही इसी के बारे में, above मतलब दाईं तरफ और below मतलब मीन का जो वैल्यू है उससे बाईं तरफ जो वैल्यू है उसके लिए दूरी है -1 सिग्मा, और इस तरफ दाईं तरफ है +1 सिग्मा। फिर कह रहा है कि टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इनफ्लक्स इज फिक्स्ड। जैसे ये 2 पॉइंट्स ऑफ इनफ्लक्स कौन हो गया, यदि हम नाम दे दें तो इसको x दे सकते हैं, इसको y दे सकते हैं। जैसे फिगर में जनरली हम लोग नेम देते हैं, देख के ही पता चल रहा है कि ये इसके पैरेलल। तो एक पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स इसको माने, दूसरा इसकी माने। तो एनपीसी का जो एग्जैक्ट आइडियल फिगर है उसमें ये एरिया फिक्स है। जैसे इसके m से -1 सिग्मा और m से +1 सिग्मा दोनों में लगभग 34.13% इधर और 34.13% के इधर। तो कह सकते हैं कि +1 सिग्मा से -1 सिग्मा या -1 सिग्मा से +1 सिग्मा की जो ये दूरी हुई, इसके बीच टोटल केसेस का 68.26% केस लाई करता है परसेंट। और यदि हम 10,000 इसको मानते हैं तो कितने केसेस हो जाएंगे, 68 पॉइंट हटा देंगे तो 6,826 केसेस इसके बीच में लाई करते हैं।
और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको भविष्य के लिए, क्योंकि इसी की मदद से आपको सवाल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल में दो चीज को देखना बहुत जरूरी है। एक चीज यह कि आपको माइनस और प्लस का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा कि आप जो दूरी निकाल रहे हैं उस दूरी को निकालने में आपको +1 सिग्मा -1 सिग्मा आदि का ज्ञान होना चाहिए। हमने कहा कि ये डिस्टेंस ये इट इज फिक्स्ड 34.13 इस तरफ, 34.13 इस तरफ, और दोनों को यदि मिला दें तो 68.26% केसेस लाई बिटवीन -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा। और इसको आप देख लीजिए, ये इससे आपको समझने में मदद मिलेगी, और एनपीसी बेस्ड जो भी सवाल होगा उसको बनाने में ये सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा कह रहा है कि the nature of the curve is bilateral as approximately 50% cases lie equally in both sides। जैसे ये हमने फिगर एक दिखाया भी था आपको जब हम लोग लेक्चर को आउटलाइन कर रहे थे। इसके बाद वो फिगर आएगा भी, थोड़ी देर हम उसको दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये मेरा जो फिगर है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्डिनेट है ये इंटायर कर्व को दो भाग में बांटता है, और जब बांटता है तो 50% केसेस लेफ्ट में होते हैं और 50% केसेस राइट में होते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि द नेचर ऑफ द कर्व इज बाइलैटरल, मतलब दो भाग में बिल्कुल इक्वली। जैसे ह्यूमन बॉडी भी आपने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वगैरह का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि बाइलैटरल थ्योरी वहां भी है। ह्यूमन बीइंग का जो दो पार्ट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसी तरह यहाँ भी एनपीसी में बाइलेटरल, और 50% इधर 50% उधर। इट्स मेजरमेंट यूनिट इज, हमने पहले ही कर दिया, इट्स मेजरमेंट यूनिट इज प्लस माइनस सिग्मा, प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिफरेंस, या ये इसी से हम लोग इसके एरिया को मेजर करते हैं। एंड सो द कर्व सर्व एज ए स्केल ऑफ मेजर। ये कर्व इसीलिए एक कर्व एक और पर्पस हल करता है, और वो पर्पस क्या है? इट बिहेव्स लाइक ए स्केल ऑफ मेजरमेंट। लेट अस मूव, यू कैन सी द फिगर। इसी फिगर की मैं बात कर रहा था, हमने इसको लिया है नेट से कलेक्ट किया आप ही को समझाने के लिए। ये फिगर आपको एग्जैक्टली आप इसको यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये दो इक्वल भाग में इसको बांट रहा है, और दो इक्वल भाग में बांटने का मतलब क्या हुआ कि 50% इन लेफ्ट साइड एंड 50% इज राइट साइड। सो द कर्व इज बाइलेटरल, इट्स 50% केसेस लाई इन वन letter and the next part 50% lie in another letter. So you from this figure you can see the total 100% यदि cases हम इसको मान लें hypothetically, क्योंकि 100% होता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तक केस ऑफ 3 सिग्मा तक यदि हम मानेंगे, आगे उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो that is approximately 9.74%. So the curve is bilateral, you understand. Now the maximum percentage of case lie between +1 सिग्मा। आगे हमने कहा कि जो मैक्सिमम केस है वो मीन से 1 सिग्मा और मीन से -1 सिग्मा, दोनों को यदि हम मिला दें 34.13% इधर, 34.13% इधर, और दोनों को यदि हम मिला देंगे तो क्या होगा? 68.26%। तो कह रहा है कि एनपीसी का जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम केसेज हैं, वह मीन से 1 सिग्मा और मीन से -1 सिग्मा के बीच लाई करता है। सो द केसेस बिटवीन +1 सिग्मा एंड -1 सिग्मा इज मैक्सिमम, एंड दैट इज 68.26%। अगेन ये एरिया भी, इस एरिया को यदि आप ले लें 2 सिग्मा to 2 सिग्मा +2 सिग्मा -2 सिग्मा to +2 सिग्मा, तो ये केस आपका अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? इसको 95.44%, मतलब 2 सिग्मा -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच जो केसेज होंगे
वो 95.44% है। और फिर 3 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा से प्लस 3 सिग्मा के बीच जो है वो 99.74%, 99.74%। और माना ये जाता है कि इतने ही केसेस को हम लोग कंसीडर करते हैं। एक और चीज़ बता दें, अभी 10,000 की बात हमने इसके डिलिब्रेशन में किया था, फिर हम लोग यहाँ 3413, ये अभी हमने इसको लिखा भी था, इसको यहाँ परसेंटेज में लिखा था और यहाँ केसेस में लिखा था। 3,413 केसेस आउट ऑफ 10,000 और 34.13% of the entire area of the curve lies between the mean and 1 sigma। ये हमने बताया ही था कि मीन से 1 सिग्मा के बीच 34.13 और माइनस 1 सिग्मा के बीच और प्लस 1 सिग्मा के बीच 34.13। और यदि हम टोटल मीन से मतलब 1 सिग्मा और 2 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा और माइनस 1 सिग्मा के बीच ले लें तो ये हमारा कितना हो जाता है 68.26%। So प्लस 1 सिग्मा मैक्सिमम केस है और परसेंटेज भी हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ये जो केसेस है इसको हम लोग मैक्सिमम केस कितना मानते हैं 10,000, मतलब 10,000 से ज्यादा की कल्पना इसमें नहीं की गई है। तो 10,000 इज 100%। और हमने अभी देखा कि 100% की चर्चा ये करता नहीं है क्योंकि ये बंद कर्व नहीं है, ये खुला हुआ कर्व है और ये माना जाता है कि कुछ चीजें इसकी है जिनकी स्टडी हम नहीं करते हैं। और इसकी मैक्सिमम स्टडी भी हम लोग -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच ही करते हैं। ये जो बाहर जो दूरी जा रही है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और यदि आप 100 से इसको माइनस कर दें तो आप फाइंड कर सकते हैं कि 0.26% को केसेस जो होते हैं उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। और 10,000 एग्जैक्ट नहीं है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 10,000 केसेस। You can see here. This is also an important figure and I have taken it from the net for your purpose in order to show you the complete picture, the ideal picture. And you can see the distance between these mean -1 sigma, mean +1 sigma and mean to -2 sigma and mean to +2 sigma, mean to -3 sigma. So you can see the figure, it is approximately written, ये एक ही अंक तक लिखा है। जैसे यहाँ 68.34% नहीं लिखा है, इस फिगर में 68.3 ही लिखा है। दूसरे में -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक 68.3, फिर +2 सिग्मा तो -2 सिग्मा के बीच लिखा है आपका ये 95.4 और तीसरे में लिखा है -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच दैट इज 99.4%। तब जबकि हमने 3 डिजिट ये लिया, ये 99.7%, 99.7%। तो हम लोगों ने 2 डिजिट तक लिया है और ये हम लोग यहाँ स्टडी कर सकते हैं। इस ग्राफ का या इस फिगर का जो नेट से हमने कलेक्ट किया है उसका पर्पस यही था कि आप इसका एग्जैक्ट फिगर देख लें और समझने का प्रयास। ये एनपीसी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिमिट के तरफ, ये लिमिट ही है। जैसे हम m +-1 सिग्मा जो +-1 सिग्मा जो लिखते हैं दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ। यहाँ परसेंटेज ऑफ केसेस को बाद में जब आप रिसर्च वगैरह में एनपीसी का इस्तेमाल करेंगे तो 95% केसेस जैसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस 95% लेवल पे देखते हैं, 99% लेवल पे देखते हैं, उस दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कह ये रहा है जैसे अभी हमने बात की 68.26% की बात की और फिर 3 सिग्मा तक हम लोगों ने कितनी बात की 99.74। ये दूसरी बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है द लिमिट्स ऑफ द डिस्टेंस ±1.96, you can see ±1.96, मतलब ये लिटिल लेस देन दिस टू,
यदि हम इस तरफ माने, लेफ्ट भी माने राइट भी माने, यदि हम राइट की तरफ ही चलते हैं तो ये जो सिग्मा है तो इससे जस्ट थोड़ा इसको डिवाइड करके हम यहाँ 1.96, हमारा केस कितना था यहाँ 95.44%, लेकिन ये कह रहा है कि प्लस माइनस 1.96 सिग्मा के बीच जो केसेज हैं उसकी संख्या वो 95%। दूसरा फिर कह रहा है प्लस माइनस 2.58 एसपी, यहाँ एसपी से ही इसको क्या करते हैं या इसको सिग्मा हम लोग बोलते हैं। तो ये कितने परसेंट केस की बात कर रहा है 99%, मतलब कि प्लस माइनस 2.58 सिग्मा रिप्रेजेंट करता है 99% केसेस को और प्लस माइनस 1.96 सिग्मा कंसीडर करता है 95% केसेस। सो द लिमिट ऑफ द डिस्टेंस, लिमिट इसलिए कह रहा है कि दोनों इंड है, माइनस इंड और प्लस इंड। सो लिमिट्स ऑफ द डिस्टेंस प्लस माइनस 1.96 सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूड 95% एंड लिमिट्स प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा जो भी कहिए इंक्लूड 99% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कर्व। हमने बताया कि ये 95% यहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये जो है यहाँ 2.58, 2 से थोड़ा ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3 और 3 के बीच में थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो इस दोनों के बीच जो है वो 99% केसेस लगता है। तो इससे इम्पोर्टेंट नंबर हमने आगे ही कहा कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन रिसर्च में जब हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंट लेवल आमतौर पे 5% और 1% रखते हैं, जिसमें हम विश्वास के साथ 95% की बात करते हैं और विश्वास के साथ 99% की बात करते हैं। और उस दृष्टि से ये दोनों फिगर प्लस माइनस 1.96 और प्लस माइनस 2.58 99% के लिए और 95% के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, the curve extends on both sides from -3 सिग्मा, ये हमने पहले ही कहा कि कर्व को हम लोग जो स्टडी करते हैं ये ओपन इंड है, कहीं मिलता नहीं है, अनंत तक चला जाता है, इसकी कल्पना है, लेकिन हम लोग जो कंसीडर करते हैं इसको -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक ही कंसीडर करते हैं। और एक और बात जो हम पहले ही कर चुके हैं वो बात भी फिर यहाँ कहा जा रहा है कि arbitrarily the area under the curve be 10,000. So the entire area under NPC is being considered as 10,000. तो ये 10,000 को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम एरिया से रिलेटेड चीजों की स्टडी करेंगे इसकी जरूरत हमको। ये आप देख सकते हैं NPC is a moderately picked curve and so is called a smooth curve. It is not like a histogram. अब हमने शुरू में भी कहा कि इसका एक ही पिक होता है, एक ही पिक, इसीलिए कहता है कि मॉडरेटली पिक्ड। और ये मॉडरेटली पिक्ड का मतलब क्या है कि जब आप इसको देखेंगे इससे थोड़ा कम इधर हो जाता है, फिर उतना ही कम इधर हो जाता है, फिर इधर घटता चला जाता है और इधर भी क्या होता है घटता चला जाता है। सो एक्चुअली NPC हैज ओनली वन पिक और ये हिस्टोग्राम या किसी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह नहीं है। ये एक मैक्सिमम पॉइंट से बाईं तरफ या दाईं तरफ घटता चला जाता है और जो घटता है वो भी इक्वली दोनों साइड में घटता चला जाता है। In the NPC, x-axis scale is generalized by z deviates. Z score, स्टैंडर्ड स्कोर माना जाता है Z स्कोर और Z स्कोर से ही इसका रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। मैंने शुरू में भी कहा कि इसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में ये Z स्कोर्स की जरूरत पड़ती है। Z इज इक्वल टू x माइनस m डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब x इज एनी स्कोर एंड m इज मीन, इसे नाम से ही लग रहा है, जैसे यहाँ ये मीन, x कोई भी स्कोर हो, x माइनस एम डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं x बाई एक्स सिग्मा। सिग्मा जो है ये नोटेशन है कि एसपी की जगह पर यूज होता है आमतौर पे सवाल जो हम बनाते हैं। तो
कह रहा है कि इन द एनपीसी एक्स एक्सिस स्केल इज जनरलाइज्ड बाय जेड डेविएट्स एंड व्हाट इज जेड डेविएट्स, दिस इज x माइनस n। यहाँ x का वैल्यू जरूरी है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसकी मदद से भी हम सवाल बनाते हैं, बल्कि मैक्सिमम या ऑलमोस्ट सारा सवाल हम इसी फॉर्मूले की मदद से बनाते हैं, क्योंकि हमको जेड डेविएट्स तो निकालना ही पड़ता है, तो बिना उसके निकाले हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। To find the deviations from the point of departure, that is mean, ST of the distribution is used as a unit of measure। अभी हमने देखा कि ये डिस्टेंस किस चीज में हम लोग नाप रहे हैं, डिस्टेंस हम लोग नाप रहे हैं किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बात यही कर रहा है। इसकी बात कर रहे हैं द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का कंसेप्ट हम लोगों ने मीडियन को पढ़ते हुए जाना था, और क्वार्टाइल डेविएशन भी हम लोगों ने निकाला है, उसी क्वार्टाइल की बात कर रहा है। The first and the third quartile, that is Q1 and Q3 are at equal distance from Q2 और median। मतलब ये कह रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि Q1 और Q, यहाँ यदि बीच में Q2 है जिसको मीडियन भी मानते हैं, तो इस मीडियन से ये इक्वी डिस्टेंस इसी तरफ इशारा कर रहा है। The first and the third quartile Q1 and Q3 are at equal distance from Q2 or median। Now this is about the parameter. We are moving towards the end of the lecture, so listen with care. This is very important, though there are only two aspects that is important. Parameters of normal distribution. What are the parameters of normal distribution? The shape and probabilities of normal distribution is defined by the parameters of the normal probability curve। मतलब जो शेप है एनपीसी का और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज है, ये दोनों डिफाइन होते हैं एनपीसी के पैरामीटर्स। और एनपीसी के पैरामीटर्स कौन कौन है? The normal distribution has two parameters as mean and standard deviation। NPC does not have one form as it changes its shape as per the values of its parameters। NPC कर्व का निर्धारण मीन ऊंचाई, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्टेंस या चौड़ाई कह सकते हैं, ये सापेक्ष में होता है। और चूंकि हर डाटा के लिए मीन और एसटी का मान बदलता जाएगा, इसलिए एनपीसी के पैरामीटर्स में भी चेंज होगा। लास्ट में कह रहा है एज इट चेंजेस इट्स शेप एज पर द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स। मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू से एनपीसी बनता है, और जैसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बदलता है, एनपीसी का मान भी, एनपीसी का फिगर भी, मान नहीं कहें फिगर कहें, फिगर भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। उसी बात को यहाँ थोड़ा और विस्तार से कहा गया है कि मीन डिफाइंस द लोकेशन ऑफ द पीक ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज मोस्ट वैल्यूज क्लस्टर अराउंड द मीन। इफ वी कीप ऑन चेंजिंग द मीन, द कर्व विल शिफ्ट लेफ्ट और राइट ऑन द एक्स एक्सिस। जैसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मीन पे लाई करता है, और मीन के अलोंग जितना वैल्यू है, और ये पीक को, जैसे मीन से डिसीजन किस चीज का होता है, मीन इज टू पीक, इसका ऑर्डिनेट या हाइट जो भी कर सकते हैं इसको, पीक, इसको डिसाइड करता है। और चूंकि मीन के इर्द गिर्द एनपीसी यदि प्रॉपर एनपीसी है, तो इसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैक्सिमम केसेस लाई करते हैं। और जैसे मीन का वैल्यू शिफ्ट करेगा, चेंज करेगा, एनपीसी चेंज कर जाएगा। तो एक तो एक है कि मीन डिफाइंस द लोकेशन ऑफ द पीक फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज मोस्ट वैल्यूज क्लस्टर अराउंड द मीन। इफ वी कीप ऑन चेंजिंग द मीन, यदि हम मीन को चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा,
the curve will shift left or right on the x axis. तो कर्व भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मीन हमारा 16 है और यदि ये चेंज होके 18 आ गया तो the curve will not be same, it will shift. और दूसरा फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमने कहा, वैसे हमने कहा कि ये ठीक इसको इसके डिसीजन के लिए, इसके निर्धारण के लिए मीन का काम है और ये जो दूरी है इसके निर्धारण के लिए एसडी का काम। हमने देखा कि जैसे जैसे मीन का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ग्राफ है वो क्या होगा, प्रभाव। और दूसरी बात अब देखें, जो हमने दूरी की बात आपको बता ही दी कि एसडी से दूरी डिसाइड होती है, लेकिन लेट अस मूव द विड्थ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चौड़ाई, इसी को चौड़ाई कर रहे हैं, इसको हम डिस्टेंस कह रहे हैं। द विड्थ of the normal distribution is defined by the standard deviation. ST determines how far away the values will fall from the mean in both sides, that is left and right. Change in ST narrows or spreads the width of the distribution. If ST is large in value, the spread is more from the mean, and if it is less in value, the spread is less from the mean. मतलब स्कैटरिंग ऑफ डाटा का जो कंसेप्ट है, वैसे भी हम लोग जब मेजर्स ऑफ डेविएशन पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने कहा कि मीन की तरफ डाटा का जो फैलाव है उसी को मेजर करने वाले को हम लोग मेजर्स स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये चौड़ाई को मेजर करता है, ये ऊंचाई को नहीं करता है। कौन? स्टैंडर्ड डेविएशन एज ए पैरामीटर ऑफ एनपीसी। और यदि इसका मान घटता बढ़ता है तो फिगर अकॉर्डिंगली चेंज होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मीन से डाटा का फैलाव कितनी दूर तक होगा, इसका डिसीजन भी स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है। यदि एसटी का मान ज़्यादा होगा तो डाटा का फैलाव मीन से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ज़्यादा होगा, और यदि डाटा का फैलाव कम, एसटी का मान कम होगा तो डाटा का फैलाव कम होगा। सो वी हैव टू parameters, and these two parameters is instrumental in the shape of the normal probability curve. As soon as mean changes, the graph will change. As soon as the ST changes, the graph will change. So we have come to know about the characteristics of NPC. NPC is a bell-shaped curve. घंटी के आकार का एक कर्व है। देख रहे हैं कि एक घंटी, बजाने वाली घंटी जो स्कूल वगैरह में टंगी रहती है, पुरानी घंटी, अब तो। और दूसरा एक कंसेप्ट है कि हमने लैप्लेस के बारे में देखा और कहा कि जो हमारा ये दूसरा कर्व जो हमको जिसने दिया है गॉस ने, उसी के नाम पे ये गॉसियन कर्व के नाम से भी जानते हैं। फिर देखा एसिम्प्टोटिक है, दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं। फिर इसके जो पॉइंट्स हैं ये ग्रेजुअली कैसे घटते हैं, फिर नंबर ऑफ केसेस कैसे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा जिससे हम लोग इसको स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं। जेड को, एक्स को भी सिग्मा वगैरह निकालने के क्रम में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो जेड इक्वल टू एक्स माइनस एम ये डिसाइड करते हैं, और यही हम इंस्ट्रूमेंटल है हमारे सवाल बनाने में। और फिर हमने पैरामीटर्स वगैरह के बारे में देखा। सो we have come to know the basics of NPC. In other lectures we shall discuss about the skewness, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि ये जो हमारा फिगर है थोड़ा स्क्यूड हो गया, तो ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस का भी कंसेप्ट है। कब डाटा स्क्यूड होगा, मतलब लेफ्ट तरफ झुक जाएगा या राइट तरफ झुक जाएगा, ज़्यादा इधर स्कोर ज़्यादा है या इधर मीन से बाईं तरफ ज़्यादा है, दाईं तरफ ज़्यादा है, एक जैसा यदि नहीं है तो वो स्क्यूड हो जाएगा। और फिर कभी ये डाटा जैसे ऐसे ये ज़्यादा पिक्ड हो जाएगा, कभी फ्लैट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसके बारे में इस आधार जो हम लोगों ने आज एनपीसी को समझने में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के माध्यम से तैयार किया, उसकी मदद से समझने का प्रयास करेंगे। और फिर एनपीसी से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम को बनाने का प्रयास करेंगे।
जो एनपीसी के एरिया से रिलेटेड होगा, क्योंकि एनपीसी में दो ही तरह के ज़्यादा सवाल आएंगे, इस एरिया को फाइंड आउट करना है या नंबर ऑफ केसेस इस एरिया के भीतर कितने लाई करते हैं उसके बारे में जानना है। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।